Good morning, students. Welcome to Science Online classes. We will proceed further with the same chapter, Safety and First Aid. And today we will discuss about the first aid to be given in different cases. Today we will study how first aid is to be given if someone has got fracture, or you can say bleeding wounds, they are fainted, or they have got burns. Okay, so we will study about all this first aid which is to be given in different cases. As you all know, we have studied what is first aid. हमने पढ़ा था ना first aid क्या होता है. So it is the first or immediate help which is given to an injured person, है ना. उसकी लाइफ को बचाने के लिए या फिर उसको इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज उसको ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए वी गिव फर्स्ट एड. तब हम पढ़ेंगे डिफरेंट केसेस में क्या क्या फर्स्ट एड दिया जाता है. द फर्स्ट वन इज़ अबाउट फ्रैक्चर. आप सबको फ्रैक्चर के बारे में पता है. फ्रैक्चर सबको होता है, या तो हाथ में भी हो सकता है या फिर आपको लेग्स में भी हो सकता है. वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ अ फ्रैक्चर. अ फ्रैक्चर इज़ अ, यू कैन से इट इज़ अ ब्रेक और इट इज़ अ क्रैक इन अ बोन. जब आपकी बोन में, हड्डियों में कोई क्रैक आ जाता है, कुछ ब्रेक हो जाता है, दैट इज़ नोन एज फ्रैक्चर. नाउ how you will come to know whether someone has got a fracture or not. So clues that a fracture has occurred is you can recognize by the fractured hand or leg. They cannot bear weight. वो वेट नहीं उठा सकते. जिसको फ्रैक्चर हुआ है वो विक्टिम अपना हैंड मूव नहीं कर सकता, उसको उसमें से कुछ उसको लिफ्ट नहीं कर सकता. ठीक है. The fractured limb starts to turn cold and blue. The victim has unbearable pain. अगर आपको ये पता है कि इस विक्टिम को फ्रैक्चर हुआ है, तो उसकी जो जहाँ पर उसको हुआ है ना फ्रैक्चर, जैसे कि उसका हैंड है, तो इट विल टर्न कोल्ड, इट विल टर्न इनटू ब्लू कलर. ठीक है. या फिर उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा कि उसको बेयर भी नहीं कर सकता. जो विक्टिम होगा उसको बहुत ज़्यादा वो स्वेट करने लगेगा. So these are the various clues by which you can recognize a person has got his leg or hand fractured. Now we will study about the first aid to be given for a broken leg. If you find someone who has got his leg fractured, what will you do first of all? First of all, you will apply ice to the fractured part to reduce swelling and pain. ठीक है. जहाँ पर उसको जो affected part है, apply ice on that. Make a splint with a rolled up newspaper, a wooden stick or a rolled up blanket. Splint बनाओ, patient को आराम से make him patient still and support him his injured area with a splinter or make a splint. ठीक है. स्प्लिंट आप बना सकते हो, किस चीज़ से बना सकते हो? रोल्ड अप न्यूज़पेपर से बना सकते हो या फिर वुडन स्टिक से बना सकते हो. नाउ व्हाट इज़ अ स्प्लिंट? स्प्लिंट इज़ एनीथिंग दैट सपोर्ट्स अ ब्रोकन लिम्ब. जो एक सपोर्ट देती है ब्रोकन लिम्ब को, दैट इज़ नोन एज स्प्लिंट. ठीक है. और स्प्लिंट को लगाने से क्या होता है, वो पार्ट उस विक्टिम का मूव नहीं कर सकता. इट प्रिवेंट्स दैट प्लेस फ्रॉम मूविंग. नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट? Tie the splint with strips of cloth just above and below the fractured area or that joint. ठीक है. जहाँ joint है, जहाँ area जो fractured area, उसको cloth से tie करो. Tie the legs loosely with padding between them to prevent the broken one from getting more damaged. उसको ऐसे loose tie करो कि जो उसका जो broken leg है उसमें ज़्यादा damage ना हो. So that is the first aid which is given for broken leg. Now the first aid which is given for broken arm. अब किसी के हैंड में भी फ्रैक्चर हो सकता है ना. So what you need to do for that? Attach a splint to the broken arm. Splint attach करो broken arm के. Splint मतलब कि that is a support given to the broken part. Right. Make a sling out of a cloth piece. Place the arm in the sling and tie the ends around the neck, as you can see in the picture. जैसे कि इसके हैंड में इसको एक piece of cloth से इसके लिम्ब को जो broken part है उसको support दिया neck में डालकर. Right. उससे क्या होगा कि इसके आर्म को सपोर्ट मिलेगा. इट विल नॉट मूव. दैट इंजर्ड पार्ट विल नॉट बी एबल टू मूव. राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट? चेक द पल्स इन द ब्रोकन आर्म. ब्रोकन आर्म में उस पल्स को चेक करो. इफ़ यू कैन नॉट फील द पल्स, द स्प्लिंट इज टू टाइट, लूज इन इट. अगर आपको पल्स फील नहीं होती तो स्प्लिंट को लूज करो क्योंकि वो बहुत टाइट है. राइट. अगर ज़्यादा ही इंजरी है तो यू शुड कंसल्ट डॉक्टर. नाउ अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं.
the doctor who creates or who fixes the bones is known as orthopedic. जो डॉक्टर बोन्स को फिक्स करता है उस डॉक्टर को बोलते हैं हम ऑर्थोपेडिक. So that doctor gives the first aid for fracture. It could be for broken arm, it could be for broken leg. The next is about sprains. अब हम sprains के बारे में पढ़ेंगे. आपने कभी देखा है कि खेलते वक्त हम कभी कभी हमारी एंकल ट्विस्ट हो जाती है या फिर वे पुल अ मसल. सो दैट इज स्प्रेन. नाउ व्हाट इज अ स्प्रेन? एन इंजरी लाइक ट्विस्टिंग ऑफ एंकल और पुलिंग अ मसल. एक इंजरी हो सकती है एंकल के ट्विस्ट होने से या फिर मसल के पुल होने से. दैट इज नोन एज स्प्रेन. These are quite common with sports person and children. जो बच्चे खेलते हैं उनके साथ ये बहुत कॉमन है, या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन है it is also common with them. They can also have an injury like sprain. Now what is the first aid which could be given for the person who has got sprain? The first aid for sprains is simple. What you need to do first is apply an ice pack to the affected area. सबसे पहले जिसको sprain हुआ है उस affected area पे ice pack लगाना है. Ice आपको directly apply नहीं करनी. What you need to do that wrap the ice in a cloth and apply that ice pack on that affected area, right? Next what you do next is to do wrap a bandage and try not to move the injured part. Bandage wrap करो और उस injured part को move नहीं करना. Raise the injured part above the level of the heart while lying down. ठीक है, और आपको रेस्ट करना है. जो आपका इंजर्ड पार्ट है उसको आपको मूव नहीं करना और उसको रेज करना है थोड़ा सा आपके हार्ट के लेवल से, थोड़ा सा उससे ऊपर उसको रेज करके आपको रेस्ट करना है. और उस लेग को जो आपका इंजर्ड पार्ट है उसको प्रॉपर रेस्ट देना है कुछ दिनों के लिए ताकि योर स्प्रेन गेट्स ओवर सून, राइट? So this is the first aid which is given for a person who has got infected by sprain. The next is about bleeding wounds. Wash your hands before touching the wound. If someone has got bleeding wounds, what you need to do is first is wash your hands before touching the wound. ठीक है. Next, clean the wound with cotton and water and apply antiseptic cream or lotion to kill the germs. ठीक है. अगर आपको चोट लगी है तो उसको डायरेक्ट हाथों से टच नहीं करना चाहिए. पहले अपने हैंड को वॉश करो एंड देन टच इट. उससे क्या होगा, आप जो हैंड्स में जर्म्स हैं वो आपके वुंड पे नहीं लगेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, कवर द वुंड विद अ बैंडेज. उसके बाद अपनी वुंड को बैंडेज से कवर करो. और फिर भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती देन यू नीड टू पुट आइस क्यूब्स इन अ टावल टू मेक एन आइस पैक. आइस पैक बनाओ. उसको कैसे बनाओगे आप? उसको एक टावल में डालोगे आइस को एंड मेक एन आइस पैक एंड try to cover the infected part, right? Next, if your nose gets bleeding, nose bleeding में आपको क्या करना है? In case of nose bleed, pinch the nose close and hold it for 7 to 8 minutes. ठीक है, आपको क्या करना है? पहले पर्सन को लाई डाउन करना है, उसको बिठाना है आराम से और उसको फॉरवर्ड लीन करना है. फॉरवर्ड की तरफ उसका मुंह आगे करना है. सिट द पर्सन डाउन एंड लीन फॉरवर्ड. Pinch the soft part of the nose and breathe through the mouth. जो आगे का नोज का जो पार्ट है, जो सॉफ्ट पार्ट है, जहाँ से उसको ब्लीडिंग हो रही है, मूव इट फॉरवर्ड एंड ब्रीथ थ्रू द माउथ. रिलीज द पिंच आफ्टर 10 minutes एंड रिपीटेड ब्लीडिंग परसिस्ट. उस पिंच को रिलीज करो 10 minutes के बाद, मतलब 7 to 8 minutes तक आपको उसको रखना है. होल्ड दैट पिंच दैट नोज क्लोज फॉर 7 to 8 minutes एंड देन यू हैव टू रिलीज इट, राइट? If it doesn't stop, then what else you can do? You have to wrap the eyes in a handkerchief and apply to the nose. It will be really helpful for stopping your nose bleeding. The next one is fainted. If a person has become unconscious or he or she has got fainted, what you need to do is, if a person has fainted, make him or her lie down for a while. उसको पर्सन को एक सेफ जगह ले करो, उसको लाई डाउन करो. ठीक है. कीप हिज और हर हेड लो टू अलाउ द एक्स्ट्रा ब्लड रीच द ब्रेन फास्टर. आपको क्या करना है? एक पर्सन को ले डाउन करना है, उसको कंफर्टेबल फील कराना है एंड रेज हिज लेग्स अबव चेस्ट लेवल फॉर 10 to 15 minutes. ठीक है. अगर उसके बाद भी पर्सन रिकवर नहीं होता within 20 minutes, then you need to call for an ambulance, right? So this is the first aid which is given to a fainted person. The next one is insect bite. If anyone has got stuck or stung by a bee or a wasp, what you need to do? What first aid we need to give?
इंसेक्ट्स बाइट्स कैन बी वेरी पेनफुल, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो इंसेक्ट का जो स्टिंग होता है हमें उसको ट्विज़र से निकालना होगा, ठीक है। वी हैव टू रिमूव द स्टिंग विद अ पेयर ऑफ ट्विज़र्स। देन व्हाट यू नीड टू डू, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा और अ कोल्ड क्रीम, ताकि उसको पेन ना हो, ठीक है। पेन को कम करने के लिए हम कोल्ड क्रीम अप्लाई कर सकते हैं विक्टिम को, राइट। कैलामाइन लोशन कैन ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस इचिंग, इचिंग को रिड्यूस करने के लिए कैलामाइन लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ अ पर्सन हैज़ गॉट हिज हैंड बर्नड, व्हाट यू नीड टू डू, डिप द बर्नड एरिया इन कोल्ड वाटर, उस बर्नड एरिया को ठंडे पानी में डालो, अपने हाथ को ठंडे पानी में डिप करो और अप्लाई एन आइस पैक, ठीक है। पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द इफेक्टेड एरिया, अगर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है तो उसको अफेक्टेड एरिया पे लगाओ। फॉर सीरियस बर्न्स यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर immediately, right? So this is all for the video. Thank you children, take care.